کمانڈو ایک پاکستانی مجاہد کا سچا داستان جس کو اے حمید نے قلم سے محفوظ کیا۔ اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے تیار ہے کمانڈو کا ایپیسوڈ نمبر 9۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف جائیں، آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دوسرے دن اخباروں میں پٹھان کوٹ چاؤنی میں دھماکے کی خبر شہ سرخیوں کے ساتھ چھپی تھی۔ پاکستانی کمانڈو اور تخریب کار بھارت میں داخل ہو گئے اور انہوں نے پٹھان کوٹ چاؤنی میں دھماکہ کیا۔ کسی بھی خبر میں یہ خبر نہیں چھپی تھی کہ پٹھان کوٹ چاؤنی کی سب سے قیمتی اور سب سے بڑی اور جدید توپ کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں۔ میں نیچے ہوٹل میں آ کر ناشتہ کرنے لگا ہوا ایک قدرپوش اور کانگریسی ٹوپی والا ہندو لالا پٹھان کوٹ چاؤنی کے دھماکے پر تبصرہ کر رہا تھا اور بے حد غصے میں پاکستان کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ دوسرے ہندو سکھ اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ کھرونڈیا رات کو میرے کمرے میں پیالی تھوڑا سا زعفران بھگو کر اس تاکید کے ساتھ رکھ دیا تھا کہ صبح ماتھے پر تلک لگا کر نیچے آؤ۔ چنانچہ اس وقت میرے ماتھے پر ہندوؤں کی طرح زعفران کا آدھ انچ لمبا نشان موجود تھا۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے ہندی اخبار میں ریل گاڑی کے اوقات پڑھ رہا تھا۔ جتنا ایکسپریس امرتسر سے شام کے وقت روانہ ہونی تھی، یہ گاڑی دلی سے ہوتی ہوئی بمبئی جاتی تھی۔ میں نے اس گاڑی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ناشتہ کر کے اوپر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ دوپہر کا کھانا اوپر بھجوا دیا گیا ہے۔ میں کمرے میں ہی پڑا اپنے نئے سفر کے بارے میں سوچ و بچار کرتا رہا۔ مجھے اپنے یہ سفر مشکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹرین کے دوسرے مسافروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو چھپا کر دلی پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ جتنا ایکسپریس امرتسر ریلوے اسٹیشن سے شام 7:30 بجے چلتی تھی، میں 6 بجے کے قریب کمرے سے نکل کر نیچے ہوٹل میں آ گیا اور کونے والی میز پر بیٹھ کر چائے پی 2 کریم رول کھائے۔ میں اپنا پیٹ زیادہ بھر لینا چاہتا تھا۔ کھرونڈیا اس وقت کاؤنٹر پر نہیں تھا۔ یہ میرے لیے سنہرا موقع تھا۔ میں چائے ختم کر کے اٹھا اور بڑی بے نیازی سے ٹہلتا ہوا ہوٹل کی سیڑھی اتر کر بازار میں آ گیا۔ 2 منٹ بازار میں کھڑا جائزہ لیتا رہا کہ کھرونڈیا کہیں آس پاس تو نہیں ہے۔ بازار کی روشنی میں وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں قدم قدم چلتا بجلی والے چوک سے گزر کر حال بازار میں آ کر پان والے ہندو کی دکان پر کھڑا ہو گیا۔ ہندو پنواڑی نے ہنس کر کہا، کیوں گنگا رام، آج تو بڑے ہیرو بنتے ہوئے پتلون اور جیکٹ ماموں نے لے کر دی ہے۔ میں نے گونگو کی طرح ہاتھ ہلا کر غوغا کیا اور ہنستا ہوا بازار میں یوں آگے کی جانب چلنے لگا جیسے ٹہل رہا ہوں۔ چند قدم چلنے کے بعد پیچھے دیکھا، کھرونڈیا اب بھی نظر نہ آیا۔ گو میدان صاف تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مسجد خیر الدین کے قریب ایک خالی رکشہ آ گیا۔ میں لپک کر اس میں بیٹھ گیا اور سکھ رکشہ ڈرائیور سے کہا، اسٹیشن چلو۔ حال دروازے کے نیچے سے رکشہ گزرا۔ سامنے کمپنی باغ کو جانے والا بڑا پل آ گیا۔ سکھ ڈرائیور پورا زور لگا کر پل کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ رکشہ پل کے اوپر جا کر دوسرے طرف ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی سڑک کی ڈھلان سے اترنے لگی۔ امرتسر اسٹیشن پر کافی رش تھا۔ جتنا ایکسپریس کے جانے کا وقت ہو رہا تھا، مسافر اپنا اپنا سامان لے اندر جا رہے تھے۔ میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ میں اسٹیشن سے چند قدم پیچھے اتر گیا۔ رکشے والے کو 2 روپے دے کر ریلوے اسٹیشن کی عمارت کی بجائے سامنے والے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ جب میں نے دیکھا رکشہ ڈرائیور نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے تو ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھا۔ ٹکٹ والی کھڑکی پر رش تھا۔ جتنا ایکسپریس میں جنتا ایکسپریس میں کوئی فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس نہیں تھی۔ میں نے قطار میں کھڑے ہو کر ٹکٹ لے اور مفلر سے منہ چھپا کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ جنتا ایکسپریس پلیٹ فارم پر لگ چکی تھی اور مسافر اس میں اپنا اپنا سامان رکھ رہے تھے۔ یہاں صفائی اور CID کے آدمی بھی تھے، مگر میں بڑے اعتماد کے ساتھ ایک ڈبے کی طرف بڑھا اور دوسرے مسافروں کے ساتھ اس میں داخل ہو گیا اور کونے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے منہ پر مفلر ہٹایا تاکہ کسی کو خوامخواہ شک نہ ہو۔ اس طرح میرا چہرہ پہچانے جانے کا بھی خطر تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا اور لائن پار پلیٹ فارم پر کھڑے ٹیلوں کی طرف تکنے لگا۔ ایک منٹ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ گاڑی چلنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ ایک سپاہی ہمارے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔
यल्ला खैर भला अंदर क्या लेने आई है। सफाई ने एक मुसाफिर को गर्दन से पकड़ लिया और बोला, कली के पैसे क्यों नहीं देते लाला। बाहर एक सिख कली कड़ा शोर मचा रहा था कि लाला जी ने 5 रुपए तय किए थे, अब 1 पैसा भी नहीं देता। लाला जी ने हाथ जोड़कर सिपाही से कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो, ये ले 5 रुपए मेरी गर्दन न दबाए महाराज। इसने जेब से रुमाल निकाल कर कोरा इसमें से 5 रुपए का मेला कुचला सा नोट सिपाही को दिया। इसने गर्दन चूड़ दे और नोट कली की तरफ फेंक कर कहा, ये लो सरदार जी अपनी मजदूरी, और डब्बे से उतर गया। मेरी जान में जान आई। सिख सिपाही चला गया तो हिंदू लाला इसके खिलाफ जहर उगलने लगा। महाराज जी सब पुलियों से मिले होते हैं, अंधेरी नगरी है महाराज, कांग्रेस को हमारी दहशा की कोई खबर नहीं महाराज। इंजन ने सीटी बजाई और दूसरी विसल दी तो प्लेटफार्म से गाड़ी की सीटी सुनाई दी और फिर एक दचके के साथ जनता एक्सप्रेस प्लेटफार्म से खुसकने लगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मुफलर सर पर लपेट लिया और हाथ गर्म जैकेट की जेब में टूंस कर कोने में टेक लगा ली। थोड़ी देर बाद गाड़ी अमृतसर से निकलकर जालिंधर की तरफ उड़ी जा रही थी। डब्बे में हिंदू पठानकोट के धमाके के बारे में बातें कर रहे थे। इनकी बातों से अंदाजा होता था कि वो पाकिस्तानी फौज से खौफजदा है। गाड़ी जालिंधर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को दूसरे हिंदू सिख मुसाफिरों के ओट में छुपा लिया। ज्यादा रश की वजह से किसी ने खास तौर पर मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, मगर जालिंधर चौनी का रेलवे स्टेशन मेरे लिए खतरे की जगह थी। मुझे इस स्टेशन से डर लग रहा था। जल्दी ही गाड़ी चौनी के स्टेशन पर पहुंच गई। जितनी देर गाड़ी जालिंधर चौनी पर खड़ी रही मैं बाथरूम में छुपा रहा। गाड़ी चली तो बाहर निकलकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे साथ हिंदू मुसाफिर बैठा था। इसने मुझसे बातें शुरू कर दी। मैंने आंखें बंद कर ली जैसा मैं सो रहा हूँ और सोना चाहता हूँ। हिंदू मुसाफिर भी कुछ देर बाद ऊँघने लगा। अंबाला चौनी पर भी मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। अगरचे मैं टेक लगाए बजाय सो रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर प्लेटफार्म को बराबर तक रहा था जहाँ पुलिस और मिलिट्री पुलिस के आदमी गुजर रहे थे। अंबाला चौनी भी खैरियत से गुजर गई तो मेरठ चौनी की तलवार सर पर लटकने लगी। मेरठ चौनी बहुत बड़ी चौनी है। मैंने अंदाजा लगाया था कि चौनी के हर स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस की नफरी कुछ ज्यादा ही थी। मेरठ चौनी से पहले मेरठ सिटी पर गाड़ी लेट गई। आधा घंटा ठहर कर आगे चली। मेरठ चौनी का स्टेशन आया तो एक सिपाही ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठा ऊँघ रहा था। गोशे चश्म से देखा कि सफाई ने डब्बे में एक गहरी नजर डालकर सब मुसाफिरों को देखा और फिर सर निकाल कर आगे चल दिया। मैंने शुक्र का कलिमा अदा किया। मेरे चौनी से गाड़ी निकली तो 15-20 मील आगे जाकर रुक गई। खुदा जाने यहाँ लाइन की मुरम्मत हो रही थी या कोई और बात थी कि गाड़ी 1 घंटा खड़ी रही। इसके बाद ऐसी लेट होना शुरू हुई कि जब दिल्ली पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। दिल्ली बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं पहले एक बार शहर में वीज़ा लेकर आ चुका था। लाल किला और चांदनी चौक की सैर कर चुका था, लेकिन अब मैं एक हिंदू के बेस में माथे पर किसर का तलक लगाए ट्रेन से उतर रहा था और भारतीय इंटेलिजेंस मेरी तलाश में थी। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों की भीड़ थी। प्लेटफार्म की दीवार के साथ मैंने मिलिट्री पुलिस वालों को देखा कि कतार बांधे खड़े एक एक मुसाफिर को घूर रहे थे। मैं हजूम में गुम होकर गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर काफी रिश्ता मुझे धक्के लगा रहे थे। मैं खुश था, मैं इसी तरह यहाँ से महफूज होकर बाहर निकल सकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना टिकट गेट पर खड़े चिकर को दिया और हजूम को रेलवे के साथ ही बाहर निकल आया था। मैं मुफलर उतार कर अपने सर पर दोबारा लपेट रहा था कि अचानक मेरी नज़र बाएं जानिब एक आदमी पर पड़ी। वो ऊपर दूसरे प्लेटफार्म को जाने वाली सीढ़ी के पास खड़ा सिगरेट पीते हुए मुझे देख रहा था। वो 40-45 की उम्र का होगा। सर पर ऊनी टोपी थी, जिस्म पर नस्वारी स्वेटर और पुराना सा कोट था और वो पाजामा पहने हुए था। इसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। एक बार तो मैं अपने जगह से हिल गया, मगर फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और अनजान बनकर दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर इस जगह पर आ गया जहाँ साइकिल, रिक्शा, टैक्सी और तांगे खड़े थे। मैंने यूं ही घूमकर एक नज़र पीछे डाली तो मेरे होश उड़ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चला आ रहा था। यकीनन ये आदमी मिलिट्री इंटेलिजेंस का था और उसे मुझ पर शक हो गया था। मेरे सामने एक टैक्सी खाली थी। मैं इसमें घुस गया और उसे कहा, चांदनी चौक चलो। मैं इस वक्त पाकिस्तानी सफारत खाने का नाम नहीं लेना चाहता था। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को बाहर निकाला तो वो पुरस्कार शख्स एक तरफ खड़ा सिगरेट का कश लगाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मेरे जिस्म में खूब की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने टैक्सी वालों से कहा कि जल्दी चलो। वो टैक्सी को निकाल कर सड़क पर ले आया। फिर इसका रुख चांदनी चौक की तरफ हो गया।
मैं दिल्ली की सड़कों से इतना वाकिफ नहीं था, अलबत्ता चांदनी चौक और लाल किला को पहचान सकता था। टैक्सी की 12 नक्श सड़कों पर से लोग गुजर रहे थे। मैंने टैक्सी ड्राइवर से नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वो मुसलमान है। मैंने शीशे में से पीछे निगाह डाली, कई एक गाड़ी और रिक्शा सड़क पर हमारे पीछे आ रही थी। मैं कोई अंदाजा न लगा सका कि वो आदमी वही रह गया है या मेरा ताक़ुब कर रहा है। जब टैक्सी 2-3 बाजारों में से गुजर गई तो मैंने ड्राइवर से कहा, तुम्हें मालूम है या पाकिस्तानी सफारत खाना कहाँ है? हाँ जी। क्या आप वहाँ जाएंगे? हाँ, पाकिस्तानी सफारत खाने। चलो, पहले ही कह दिया होता बाबूजी, जब चक्कर काट कर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा। टैक्सी ड्राइवर ने एक चौराहे से टैक्सी घुमाई और एक तंग बाजार में गुजर कर खुली सड़क पर आ गया, जिसकी एक जानिब ऊंची ऊंची इमारतें और दूसरी जानिब एक पार्क था। मैंने एक बार फिर गर्दन घुमाकर उकबी शीशे से पीछे देखा। कुछ फासले पर एक टैक्सी चली आ रही थी। इसके अंदर सवारियां बैठी मुझे नजर न आई। कहीं वो कमबख्त मेरा ताक़ुब तो नहीं कर रहा था। मैंने सोचा, फिर ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी कि वो रेलवे स्टेशन पर ही रह गया होगा। टैक्सी एक फैशनेबल इलाके में पहुंच गई। यहाँ बड़ी खूबसूरत कुटिया थी। सड़क के दोनों जानिब साफ सुथरे फुटपाथ बनी हुई थी। इन फुटपाथों के ऊपर घने दरख्तों के जनवरी की सुनहरी धूप में चमक रहे थे। भारत में तैयार की गई एम्बेसडर कारें गुजर रही थी। मेरी टैक्सी एक इमारत की गेट पर रुक गई। इस खूबसूरत बंगलानुमा इमारत की एक तरफ उर्दू और अंग्रेजी में सफारत खाना पाकिस्तान लिखा था। इसे देखते ही मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया हूँ। गेट पर एक भारतीय गोरखा सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने उसे अंग्रेजी में कहा कि पाकिस्तानी सफीर को मिलना चाहता हूँ। इसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। ये इस्तकबालिया था। मैंने एक बार फिर पीछे घूम कर देखा। मुझे वो पिरस्रार मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी कहीं नजर न आया। मैं इस्तकबालिया ऑफिस में घुस गया हुआ एक लड़की हीटर जलाए बैठी थी। इसके लिबास से कतई अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो हिंदू है या मुसलमान। इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, फरमाइए। मैंने उससे कहा कि पाकिस्तानी कल्चरल अताशी से मिलना चाहता हूँ। मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ और उनके नाम एक ज़रूरी पैगाम लाया हो। लड़के ने मुझे बैठने का इशारा किया। मेरे माथे पर लगा हुआ तलक मुझे हिंदू जाहिर कर रहा था। ये ज़ाफ़रान का तलक था। मैंने ट्रेन में दिल्ली के करीब पहुंचकर उसे बाथरूम में पानी से साफ करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो मिट नहीं सका था। लड़की ने फ़ोन पर किसी से कुछ बात की और मेरी तरफ देखती रही। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं हमसा पर मोदमारा शिव समिति का नुमाइंदा हूँ। हम दिल्ली में एक स्मारक करना चाहते हैं बरनी साहिब की प्रांतगी में। लड़की को शायद मेरे फंक्शन की सियासी अहमियत का एहसास हो गया था। इसने रिसीवर रख दिया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम दौलत राम बता दिया। इसने रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज करके मेरे दस्तखत कराए और चपरासी से कहा कि मुझे बरनी साहब के पास ले जाए। चपरासी वर्दी पोस्ट था। वो मुझे साथ लेकर सफारत खाने के उखबी जानिब एक बरामदे में आ गया। या एक कमरे के बाहर कल्चरल अताशी बरनी साहब का नाम लिखा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हो गया। एक शानदार मीज की दूसरी जानिब एक नौजवान बेटा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, फरमाइए माशा जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो मेज पर रुकी एक डायरी की वर्क उलटने लगा और बोला, इस हफ्ते में मसरूफ हो, ये बताइए आपका स्मारक कब हो रहा है। मैंने आहिस्ते से कहा, मैं हिंदू नहीं हूँ बल्कि एक पाकिस्तान हूँ। कल्चरल अताशी का हाथ वही रुक गया। इसने चूम कर मेरी तरफ निगाहें उठाई और बोला, पाकिस्तानी आप कहाँ से आ रहे हैं या हमारी बातें कोई और तो नहीं सुन रहा? जी नहीं, मगर बात क्या है। इसने सिगरेट शीशे के एक खूबसूरत चमकीले एस्ट्रे में बुझाते हुए पूछा, मैं सफीर साहब से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे इनके पास पहुँचा दे। इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और इसकी जगह बेजारी का तासिर आ गया। वो रवायती से सर्द लहजे में बोला, सफीर साहब तो इस्लामाबाद के एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए, मगर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या पासपोर्ट गुम हो गया है या फिर वीज़ा ख़त्म हो गया है? जी नहीं, इनमें से कोई बात नहीं। तो फिर आप कौन है और पाकिस्तान या दिल्ली किस तरफ पहुंच गए हैं? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि इस पर अपना राज जाहिर करना चाहिए या नहीं। मैंने पूछा, सफीर साहब के बाद या इनका काम कौन साहब करते हैं? कल्चरल अताशी ने बेजार होकर कुर्सी की पुष्ट से टीक लगा ली और दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए कहा, सबसे पहले आप मुझे अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाए, इसके बाद ही आपके किसी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं। ये सुनकर वो एक बार फिर चौंक पड़ा। क्या गुम हो गया है? नहीं, मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं था। तो फिर आप भारत कैसे आए? बॉर्डर क्रॉस करके। मैंने आहिस्ते से कहा और अपने कुर्सी से उछल पड़ा था। तो आप स्मगलर है? माफ़ कीजिएगा, मैं स्मगलर को अपने वतन का दुश्मन समझता हूँ। बेहतर यही है कि आप तशरीफ ले जाए।
मैं स्मगलर नहीं बल्कि एक रजाकार कमांडो हूँ। पठानकोट छावनी में जो धमाका हुआ था वो मैंने ही किया था। ये सुनना था कि पाकिस्तानी कशलर अताशी एकदम उठ खड़ा हो, इसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ, मगर दोबारा उसे जुबान पर ना लाए। मैंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, आप हमारी मदद के लिए यहाँ है क्या? आप मेरी मदद नहीं करेंगे। मैंने पाकिस्तान की एक दुश्मन तोप को तबाह कर दिया। भारतीय इंटेलिजेंस मेरे पीछे है। क्या आप मुझे अपनी हिफाजत में पाकिस्तान नहीं पहुंचाएंगे? क्या ये आपका फर्ज नहीं है? कशलर अताशी का एक लफ्ज पर जोर देकर बोला, मिस्टर, हम यहाँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए बैठे हैं। हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कुशीदगी पैदा हो। मैंने गुस्से से कहा, आप बुज़दिल है, आप अपनी ड्यूटी से गफलत बरत रहे हैं। मेरी हिफाजत करना और मुझे हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुंचाना आपका कौमी फर्ज है। कशलर अताशी ने जोर से मेज पर मुक्का मारा, फिर अपने तेज पर काबू पाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, जनाब, हमारी ड्यूटी और हमारे कौमी फर्ज किया हम उसे बखूबी पहचानते हैं। ठीक है, परसों सफीर साहब वापस आ जाएंगे। आप परसों शाम को तशरीफ लाए, मैं आपको इनसे मिलवा दूंगा। लेकिन बाहर खतरा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरी तलाश में, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बनी साहब ने तुल्खी से जवाब दिया, आपने जो कुछ किया हम उसे पूछ कर नहीं किया। ये कहकर इसने गुस्से से सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया और उठकर टहलने लगा। फिर रुक कर बोले, आपके लिए बेहतर ये है कि किस तरह मशरक़ पाकिस्तान की तरफ निकल जाने की कोशिश करें, लेकिन ये काम भी आपको खुद करना होगा। सफारत खाना आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्त के साथ। तब तक अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।